سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پہلا راؤنڈ ہم جیت گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے والا راؤنڈ بھی ہم جیت جائیں گے. ہمیں امید ہے، ہمیں اتنا کانفیڈینس ہے اپنے اوپر کہ ہم جیت جائیں گے. اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں اگلے راؤنڈ میں کیا ہوتا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گروپ میں جو بچے ہیں ان سے کیا جاتا ہے. سوال وہ بڑے دھیان سے اور اطمینان سے سنے اور جواب بھی بڑے عالیشان طریقے سے دے. اعلان تبلیغ کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام سے فرمایا؟ کوہ صفا. جواب بالکل صحیح ہے. اگلا سوال حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ کے حوالے سے. مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے کون تھے؟ ابو لہب، عتبہ بن ابی معیط، عتبہ بن ابی الیاس. ابو لہب، عمر بن ابی الیاس، عتبہ بن ابی معیط. جواب بالکل صحیح ہے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ کون سی آیت دہرائی گئی ہے؟ آیت الکرسی. وہ جواب دے رہی ہے وہ بچی وداؤٹ نوز پیس. آپ باہر آ جاؤ نا بیٹا، ان کو آپ باہر آ جاؤ، ادھر باہر آ جاؤ. آپ یہاں سے جاؤ بیٹا، اس کو باہر آنے نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گروپ سے سوال ہے. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کیا جواب دیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابو لہب بول اٹھا، تم پر ہلاکت ہو، کیا تم نے اسی لیے جمع کیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال ہے. اسلام کے ابتدائی دنوں میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خدمت کس نے کی؟ سوال میں پھر سے دہرانا چاہوں گی. اسلام کے ابتدائی دنوں میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خدمت کس نے کی؟ ابو بکر صدیق اور حضرت خدیجہ نے. السلام علیکم، آداب ناظرین. شوہم چینل ڈوڈا سے میں آپ کا میزبان ادریس فلاحی قصبہ ڈوڈا کے سرائی عیدگاہ کے اندر موجود ہوں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ضلع کے مختلف نجی و سرکاری اسکولوں کے طلبہ و طالبات کا کوئز مسابقہ ہو رہا ہے. یہ مسابقہ آرگنائز کیا جا رہا ہے سیرت کمیٹی دین اسلام کی ڈوڈا سے، اور اس کے سربراہی کر رہے تھے سعد اللہ شاد صاحب. ان کے ہمراہ خالد نجیب سہروردی صاحب، ان کے ساتھ ساتھ شاہین صاحب، شریف صاحب اور ساتھ ہی ساتھ عبدالحفیظ فرقان آبادی صاحب. اس کے علاوہ بھی کئی دیگر یہاں پہ ہمارے معزز مہمان بھی دیکھے جا رہے ہیں اس پروگرام میں، چاہے ان میں آفتاب صاحب ہوں، خورشید صاحب ہوں. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جن کے نام ہم آپ تک زیادہ طویل عرصے تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. سیدھا بات کرنے کی کوشش کریں گے ضلع ڈوڈا کے سابقہ ایم ایل اے یا سیرت کمیٹی ڈوڈا کے سربراہ خالد نجیب سہروردی صاحب سے. پوری جانکاری لینے کی کوشش کریں گے کہ آج جو سرائی عیدگاہ کے اندر مسابقہ کوئز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام مختلف اسکولوں کا کرایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے ذریعے سے کس طریقے کے مفاد معاشرے میں آ سکتے ہیں اور کس طریقے کی تربیت بچوں کی ہو سکتی ہے، انتظامیہ کے ساتھ اس میں کس طریقے کا ربط ہے. پوری جانکاری آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پروگرامز آج کافی عرصے دراز کے بعد ڈوڈا کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے، کافی سارے نونہال بچے جن کی پیدائش کے کچھ ہی سال بعد ان کے زندگی میں پہلی بار اس طریقے کا پروگرام دیکھنے کو مل رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا تھا بنیادی طور پر اور کس طرح سے آپ لوگوں نے یہ قدم اٹھائے؟ السلام علیکم. ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلا پروگرام ہے، بلکہ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ بڑی دیر کے بعد ہوا ہے. اس سے پہلے بھی اکثر ایسے پروگرام ہوئے ہیں، گو کہ ان کے نام مختلف تھے لیکن فریدہ ماڈل اسکول کرواتے تھے، سیرت کمیٹی کے بینر تلے کرتے تھے. لیکن آج بڑی مدت کے بعد ہوا اور یہ سیرت کے حوالے سے
बच्चों में इनको मालूम हो कि उनकी निस्बत कहाँ से है, नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, उनकी क्या तालीमात थी, बच्चों को मालूम हो जाए। अगर ये बच्चे वाकई सीरत से वाकिफ़ हो जाएं, सीरत पढ़ना चाहें और उसको अपने अंदर समोने की कोशिश करें हम सब, तो यकीनन माशरे को बेहतरीन अफराद मिलेंगे, बड़े मोहब्बत करने वाले मिलेंगे, अमन पसंद मिलेंगे और इंतहाई काबिल और जो माशरे के लिए मुफीद साबित हों उनके लिए होगा। यही प्रोग्राम, ये दूसरा इस नौइयत का प्रोग्राम है। पहला मंगलवार को हुआ था, आज दूसरा प्रोग्राम, पहले बच्चों का लड़कों का था, आज बच्चों का प्रोग्राम है। तो ये भी अपने इख्तिताम को पहुंचने लगा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छी तैयारियां की बच्चों ने और जितने क्विज़ वालों के पास जितने सवालात थे वो सब सवालात ख़त्म हो गए, लेकिन बच्चों ने मुकाबला सख्त किया, जवाबात ख़त्म नहीं हो उनके पास। तो इंशाल्लाह ऐसे आज आगे भी प्रोग्राम होते रहेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है। इससे अब टॉपिक आज तो क्विज़ के थे, उसके बाद इनको मौजू दिए जाएंगे मुख्तलिफ़ मज़ामीन पे, ये बच्चे तैयारी करेंगे अपनी पढ़ाई के साथ साथ और ये इनके लिए बहुत मुफीद है, हमारे लिए भी बड़ा मुफीद रहेगा। तो अगर देखा जाए इसमें जिस तरीके के ज़िला की इंतज़ामिया है और इस तरीके के प्रोग्राम के हवाले से चाहे किसी भी जगह पे हों, उनका भी उसमें काफ़ी मदद मुआवनत रहती है। जिस तरीके से पिछली बार यहाँ पे ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम मनाया गया और डिप्टी कमिश्नर अपने SSB के हमरा यहाँ पे पहुँचे, आपके प्रोग्राम में शिरकत की, और इस तरीके के प्रोग्राम के हवाले से इंतज़ामिया का आप सब लोगों की तरफ किस तरीके का ताउन? हमने इंतज़ामिया से कोई ताउन मांगा नहीं, लेकिन उनको दावत दी ज़रूर हमने और यहाँ वो आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इंतज़ामिया कहीं पे भी किसी का भी फंक्शन हो, किसी का भी त्यौहार हो, किसी का इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है। यहाँ के लोग भी ऐसे हैं, हम भी इंतज़ामिया के साथ ताउन करते रहते हैं, वापस उनका भी रेसिप्रोकल होता है कि वो भी हमारे साथ ताउन करते हैं। आज तक हमने ना इधर से कोई झगड़ा किया, ना उन्होंने हम पर कोई दबाव डाला है। एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी है, दूसरे लोग भी, पुलिस वगैरह सबसे ताउन ही मिला है, इधर से भी ताउन दिया गया है। खुसूसन डोडा के लोगों ने कभी एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात, हमेशा ताउन ही दिया है। बदले में अगर वो भी करते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी, वैसे तो शहरी भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि अमन को कायम रखें, वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी ज़िम्मेदारी है कि कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी बात हमारे शहर में कोई ऐसी न हो। हर चीज़ पर नज़र उनको रखनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम यही होता है। अपने तौर से करते हैं, हम अपने तौर से करते हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। बाकी अल्लाह मालिक है, कौन कितनी ज़िम्मेदारी निभा पाता है वो अलग बात है। अगर देखा जाए यहाँ पे जिस तरीके से आपने ये प्रोग्राम्स करवाए, इसके अलावा भी अगर देखा जाए नौजवान नस्ल जो है इस वक्त बहरा रवी की शिकार है, मुख्तलिफ़ गलत राहों की तरफ है। अभी हमने आप ही के एक साथी से बात की, उन्होंने इस हवाले से बताया कि ये इस तरीके के प्रोग्राम्स उन्हें अखलाकी और किरदारी ज़िंदगी को संवारने में मदद करते हैं। तो इसकी किस तरीके से आप तस्दीक करेंगे? ये वाकई बात वही है कि जब बच्चे को मॉरल एजुकेशन मिले, उनको पता है उनकी किसके साथ निस्बत है, उनकी पूरी ज़िंदगी उनकी सीरत क्या रही है, उस सीरत की तालीम हमें क्या दी गई है, और साथ में अल्लाह ताला ने उनका उसवा हसना हमारे लिए नमूना करार दिया है, तो हमने उनकी इत्तिबा करनी है। हम बच्चों में कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें बच्चों में दाखिल हों, उनके साथ अखलाकी तालीम हो, उनका किरदार बनाने की, उनकी किरदार साजी की कोशिश करते हैं। और ये वाक़ई अगर इंसान का किरदार मजबूत हो जाएगा, हमारे नौजवान का किरदार मजबूत हो जाएगा, तो यकीनन वो इन मनशियात की तरफ नहीं जाएंगे, बेराह रवी की तरफ नहीं जाएंगे। ये उनको वापस पलट के लाने की भी एक हमारी कोशिश है कि आजकल ड्रग मीनस बढ़ रहा है, बेराह रवी है, फहशी है, उसमें
माशरा ही वो किरदार अदा कर रहा है, उसमें हुकूमतें भी हैं और मुख्तलिफ इदारे भी उसको फैलाने का किरदार करती हैं। हमारी ज़िम्मेदारी उसको बच्चों तक ना पहुँचे, बच्चों को गलाजत से वापस लाएं, उस वो जो वबा की सूरत इख्तियार कर गए है उससे दूर हटाने की कोशिश, यही एक कोशिश है। इसके ज़रिए से भी और भी दूसरी कोशिशें करते रहेंगे इंशाअल्लाह। देखिए जिस तरीके से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सीरत नबी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले अक्सर मुसलमान या मोमिन लोग हैं या इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर देखा जाए दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके के मज़ाहिब हैं और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सनातन धर्म या दीगर सिख धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या उन लोगों के साथ बाकी सारा इत्तिफाक वगैरह या उनके किरदार साजी के हवाले से आपका क्या पैगाम रहेगा? देखिए मज़हब कोई गलत नहीं होता, वो जो कंट्रोवर्सीज जो उठती हैं कहीं से भी उठती हूँ, वो कोई भी मज़हब से वाकिफ़ नहीं होता, दीन से। जो वाकई अगर नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानता वो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे, और जो बेहतरीन इत्तबा करने वाला होगा वो भी किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ कभी वो बात नहीं करता है। बात हमेशा उन लोगों ने की जिनको खुद मज़हब का मालूम नहीं, ना उन लोगों को मज़हब का मालूम, अगर हमारी तरफ से की किसी ने उसको भी मज़हब का कोई पता नहीं। कोई इस्लाम को ख़तरे में कहता है, कोई धर्म को ख़तरे में कहता है, धर्म ख़तरे में कहीं नहीं रहा है। धर्म तो हिफाजत करने वाला है, दीन हिफाजत करता है, वो दीन हमारी हिफाजत करेगा, हमने उसकी हिफाजत नहीं करनी है। दीन है अल्लाह ताला का दीन है, इसको फैलना है, इसका अपना एजाज़ है, इसमें मेरी कोशिशों का नहीं है। मेरी जो कोशिशें होती है मैं अपने लिए करता हूँ, बाकी जो भी ये कंट्रोवर्सीज उठाता है उनको न मज़हब का मालूम होता, न अपने धर्म का मालूम होता, किसी को नहीं मालूम होता। वो हमेशा न्यूज़ में रहने की कोशिश करते हैं और बाकी उनको कोई मतलब नहीं होता। मैसेज क्या रहेगा आपका सब कम्युनिटीज़ के? नहीं, मैसेज हमारा नहीं, मैसेज नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, पैगाम इंसानियत, पैगाम अमन है, यह उनका पैगाम है। हम कोशिश करते हैं लोगों तक पहुँचाने, बच्चों के ज़रिए कल दुनिया को पैगाम पहुँचाए, किरदार के ज़रिए पहुँचेगा, उनके इल्म के ज़रिए पहुँचेगा, यही हमारी कोशिश, मैसेज उनका। साथ इस वक्त सराय ईदगाह डोडा के अंदर शेख अब्दुल हफीज़ फुरकान आबादी, इसी सिलसिले में जो आज का प्रोग्राम है इनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि इन्होंने इस प्रोग्राम में किस तरह से शिरकत की और यहाँ क्या देखा और यहाँ से ये क्या मैसेज सभी लोगों के लिए देते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। पहले आपका इस्तकबाल। शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आप इस प्रोग्राम में किस हैसियत से शिरकत किए और यहाँ पे आके आपने क्या देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बड़ी खुशी हुई सीरत कमेटी डोडा ने जिस इनकाद किया था इस खूबसूरत प्रोग्राम का। इस किस्म के प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मुखालिफिन मुख्तलिफ़ किस्म की कीचड़ उछालते हैं नबी अकरम अलैहिस्सलाम की शान में, जो गुस्ताखियाँ होती है, उनका जो बेहतरीन और मुअस्सर अंदाज़ में जवाब है वो ऐसा ही है। दरअसल नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आफ़ताब है, लेकिन उनके उस आफ़ताब के सामने हम चादर बनकर खड़े हैं, पर्दा हमने कर दिया। अगर इस पर्दा हटाया जाएगा, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की खूबसूरत ज़िंदगी को लोगों के सामने पेश किया जाएगा, नफ़रतें ख़त्म होंगी, कदूरतें ख़त्म होंगी और आपसी भाईचारा, अमन, मोहब्बत और शांति का माहौल कायम होगा। ये बेहतरीन मौका है और इस किस्म के प्रोग्राम्स मुसलसल होने चाहिए। मैं बड़ा ही खुश हुआ और आइंदा के लिए भी तवक्का रखता हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए। इस तरीके से बच्चों ने यहाँ पे क्विज़ में जो है हिस्सा लिया और किस तरीके के मुख्तलिफ़ स्कूली बच्चों को आपने देखा कि उन्होंने प्रोग्राम को किस तरीके से अंजाम तक पहुँचाया? क्या बहुस्न खूबी ये अंजाम पहुँचा बच्चों की जानिब से या कुछ कोताहियाँ रहीं किस तरह से? बहुत ज़्यादा मेहनत की थी बच्चों ने और असातिज़ा ने। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ऑर्गेनाइज़र्स जो इसके हैं, जिन्होंने इसका इनेकाद किया, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ।
और असातिज़ा को जिन्होंने बच्चों को तैयार किया था। आपने खुद भी देखा कि मुकाबला किस कदर कड़ा रहा, बहुत आगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हुआ बच्चों की इस मेहनत को देखकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी तलबा और तालिबात का ये क्विज़ का प्रोग्राम जो यहाँ रखा गया है, मैं काबिल तारीफ़ समझता हूँ अपनी यहाँ की सीरत कमेटी को कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा को अपने आने वाले नस्लों में मुंतकिल करने के लिए एक अच्छी कोशिश की है। तो ये सीरत का प्रोग्राम जो पिछली बार भी हुआ, जो तलबा का था, जो लड़कों का प्रोग्राम था और बहुत बेहतरीन उन्होंने तैयारी की थी। तो आज भी बच्चियों का जो प्रोग्राम है, तालिबात का प्रोग्राम, ये भी बहुत तैयारी के साथ आई हैं। तो इससे एक ये बात हमारे सामने आती है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी बात है कि वो नबी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में दुनिया के अंधेरों को दूर करने के लिए आए, जो हक़ की सरबलंदी के लिए तशरीफ़ लाए और जो तमाम इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें रहमत बनाकर भेजा, रहमतल लिल आलमीन जिन्हें कहा गया, ये प्रोग्राम जो हैं इनसे अपने हम जो नौनिहाल हैं, आने वाली जो नस्लें हैं, उनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो मुंतकिल होगी और इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी बेटियां जो है, हमारे बच्चे जो हैं, आने वाले वक्त में, आने वाला वक्त जो होगा उसमें वो माशरे के लिए बेहतरीन लोग साबित होंगे, बेहतरीन अफराद साबित होंगे, उनके अखलाक, उनके किरदार जो हैं वो बहुत बेहतरीन होंगे और उनसे आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा। अभी देखिए यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ ये प्रोग्राम जो है बहुत कम यहाँ हुए हैं, मतलब इस किस्म का प्रोग्राम हुए हैं, बहुत छोटे लेवल पर हुए हैं, लेकिन ये पहली मरतबा मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का प्रोग्राम जो है जो सीरत से रिलेटेड है, ये पहली बार यहाँ हो रहा है। हम देख रहे हैं कि माशरे में उरियानियत फैल रही है, माशरे में बदनज़मी फैल रही है, बदअमनी फैल रही है, हमारे नौजवान जो हैं वो गलत राहों पर चल पड़े हैं, कहीं ड्रग्स वगैरह मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं जो सब लोग जानते हैं। वहाँ से उन्हें वापस लाना, वहाँ से उन्हें निकालना, उसके लिए बहरहाल ये प्रोग्राम जो है बहुत अहमियत के हामिल हैं, बहुत ज़रूरी हैं और ज़रूर इनका फ़ायदा होता है। अभी देखिए ये तो इब्तिदा है, मुझे मालूम नहीं, अभी तक तो सीरत कमेटी ने इस किस्म के प्रोग्राम नहीं किए हैं। पहली मरतबा उनकी तरफ से ये प्रोग्राम जो है ये कराए जा रहे हैं, कराया गया, पहला प्रोग्राम है आज ये। तो हो सकता है आइंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतल्लिक क्विज़ से हटकर अब दूसरा प्रोग्राम जो होगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे डिबेट्स हो सकती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे मुख्तलिफ़ तकारीर हो सकते हैं, तकारीर के मुकाबले हो सकते हैं, या कुरान मुक़द्दस पर भी क्विज़ हो सकता है और कुरान के मुतल्लिक भी बच्चों को तैयार किया जा सकता है। बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह के प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे और हम भी माउनत करने के लिए इंशाल्लाह तैयार होंगे ऐसे प्रोग्रामों में। नाज़रीन, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ कराने वाले यहाँ पे जो होस्ट थी टीम, उनमें से काफ़ी सारे यहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने इसे पूरी तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से इख्तिताम पज़ीर किया, इन्हीं में से कुछ लोग हैं, इनसे थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जिस तरीके से आप आज बहैसियत कन्वीनर इस पूरे प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे, काफ़ी सारे सवालात जो आपने किए, तो किस तरीके से आपने इस पूरे क्विज़ को तैयार किया था और किस तरीके से आप जो है इख्तिताम तक इसे पहुँचाए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमूना रखा है। तो जैसा कि हम सब ने देखा आज कि बच्चों के अनथक मेहनतों की वजह से और तमाम स्कूल जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, तो उन सब की मेहनतों की वजह से हमने आज का यहाँ पर रिज़ल्ट भी देखा कि कैसा रहा।
تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، تو وہ ہم دیکھ چکے یہاں پر کہ کس طریقے سے ہماری زندگی خوشگوار بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور آخرت میں تو اس کا انعام ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے دین پر چلے گا، جو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے گا، تو اس کو میں اس دنیا میں بھی انعامات سے نوازوں گا اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازوں گا۔ کس طریقے کا پروگرام جو سیرت کے حوالے سے یہاں پہ ہوا پورا سنبھالا آپ نے، کس طریقے سے تیاریاں کی تھی، اور کیا لگتا تھا آپ کو کہ اس طریقے سے منظم طریقے سے اختتام پہنچتا یا پہنچے گا یا نہیں، کس طرح سے؟ اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ محنت کروائی ہے بچوں کو، یہ کسی ایک ٹیچر کا کام نہیں بلکہ پورے اسکول کی محنت کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور سب سے پہلے ہم شکریہ کرتے ہیں انتظامیہ کا، اور خاص کر ضلع ڈوڈا کے مرکزی سیرت کمیٹی کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس محنت میں، اور انہوں نے یہ سوالات نکالے اور بچوں کے حوالے کر دیے، اور بچوں نے بھی اس میں بہت زیادہ محنت کی، اور اسکول والوں نے بھی محنت کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ جتنے بھی اسکول یہاں پر موجود تھے، ہر کسی ٹیچر نے اپنی محنت کا یہاں پر رنگ دکھا دیا ہے، مظاہرہ کرا دیا ہے۔ تو ہم سیرت کمیٹی سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے پروگرامات کیے جائیں، اور ایسے چاہے وہ سیرت پر ہوں یا قرآن کریم کے حوالے سے ہوں، تو تاکہ اس طریقے سے ہماری جو نوجوانان نسل ہے وہ بھی ان کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہو جائے، اور پیرنٹس کے دلوں میں بھی قرآن اور سنت کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو ناظرین، کمپٹیشن میں اس وقت جو طالبات مختلف نجی اور سرکاری اسکولوں کے ذریعے سے آج سرائی عیدگاہ کے اندر کوئز کمپٹیشن میں شرکت کی ہیں، انہی میں سے چند لڑکیوں کے ساتھ تھوڑا سا بات چیت کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا۔ طیبہ اقبال۔ کیا کہنا چاہو گے جس طریقے سے پہلا راؤنڈ آپ لوگوں نے کوالیفائی کیا، اب دوسرا راؤنڈ یا حتمی راؤنڈ یا آخری راؤنڈ مانا جائے گا، کس طریقے کی تیاری، اور کیا لگتا ہے آپ کو یہ مقابلہ آپ جیت پاتے ہیں یا کس طریقے کی تیاری؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پہلا راؤنڈ ہم جیت گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے والا راؤنڈ بھی ہم جیت جائیں گے۔ ہمیں امید ہے، ہمیں اتنا کانفیڈینس ہے اپنے اوپر کہ ہم جیت جائیں گے، اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اگلے راؤنڈ میں کیا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے کوئز ہو یا کوئی بھی مقابلہ ہو، آپ کا نام بھی جاننا چاہوں گا۔ جی سدرا۔ دیکھا جائے کافی سارے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، وہاں پہ جب کمپٹیشن کے اندر انسان بیٹھا جاتا ہے تو دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی انسان ڈگمگاتا ہے، سوال آنے کے باوجود انسان جواب نہیں دے پاتا ہے۔ تو پھر کس طرح سے آپ لوگ یہ آپس میں مل جل کے سب سوالات کا جواب دے رہے ہیں؟ جی ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور ہمیں ضرور محنت کا پھل ملے گا۔ کتنے ٹائم سے محنت کر رہے ہیں؟ 10-15 دن سے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عائشہ۔ کیا کہو گے عائشہ، آپ تینوں کا ایک گروپ ہے، پہلا راؤنڈ کلیئر ہو چکا ہے، آخری اور حتمی راؤنڈ ہے، کس طریقے سے کہیں گے کہ یہ جو کوئز ہے اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں، پہلی بار شاید آپ اس طریقے کے کوئز میں ہیں، تو کس طریقے کا ماحول لگ رہا ہے، اور آگے کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا، پھر سے ہونا چاہیے آگے یا نہیں؟ ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی ایسے ہی جیت جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تک ہے سب۔ دیکھیں اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی کافی سارے بچے ہیں، ان سے بھی تھوڑا سا جان کر لیتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آیت۔ کیا کہنا چاہو گے، پہلا راؤنڈ آپ نے بھی مکمل کر لیا ہے، دوسرے راؤنڈ میں آ رہے ہو، کس طریقے کا مقابلہ ہے؟ پہلے راؤنڈ میں تو چلیے کچھ بچے تھے جن کو آپ نے وہاں سے نکالا، اب لیکن دوسرا گروپ بھی فاتح ہے اور آپ کا بھی، تو کس طرح سے آپ دونوں آپس میں مقابلہ کریں گے، اور کس طرح سے لگتا ہے کہ مقابلہ آپ جیت سکتے ہیں؟ ہم نے بہت محنت کی، اس لیے ہم چاہتے ہیں ہم ہی اپنے اسکول کو فرسٹ لائیں انشاءاللہ۔ ہماری امید ہے کہ ہم اپنے اسکول کو فرسٹ لائیں۔ آپ کا اسکول الہیرا پبلک اسکول۔ آپ کا کیا نام؟ میرا نام سعدیہ حلیمہ۔ آپ ان کے ہمارا صفیہ گروپ، حفصہ الہیرا پبلک۔ اس طریقے سے یہاں پہ یہ اقرا انٹرنیشنل کی بچیاں بھی ہیں، آپ کا نام جاننا؟ عائشہ فاروق۔ کمپٹیشن میں اس وقت آپ جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو، یہاں پہ باقی سارے لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور آپ ہی لوگوں کو ٹیم میں چنا گیا، تو کس طریقے کی اپورچونیٹی آپ کو لگ رہی ہے؟ اچھی لگ بھگ۔ آئندہ اس طریقے کے پروگرام پھر سے ہونے چاہیے، یا کس طریقے سے آپ نے آج دیکھا مزہ آیا یا نہیں، اور آگے کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ آئندہ بھی ہونے چاہیے، اور مزہ بھی بہت آیا۔ کس
इससे सीखने को भी कितना मिल सकता है आप? बहुत ही ज़्यादा अरबिक के लिए। देखिए यहाँ पे और भी कुछ बच्चे हैं, थोड़ा सा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप कुबरा बतूल। मैं हबीबा ग्रुप से हैं और पहला राउंड आपने भी कंप्लीट कर लिया है। किस स्कूल से आप? असरार इकबाल एकेडमी। किस तरीके का कंपटीशन यहाँ पे रहा? आपको क्या लगता है, ज़्यादा सख्त कंपटीशन रहा या बिल्कुल नॉर्मल रहा या कुछ कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट हुई? किस तरह से? नॉर्मली रहा। आइंदा के लिए क्या रहेगा आपका? किस तरीके से आप ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे? अच्छा लग रहा है या कुछ कमियां आपको लगी हैं कुछ? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, आइंदा भी हम आएंगे। तो ये थी कुछ बच्चियां जो इस वक्त कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, पिछले हफ्ता इतवार को यहाँ पे बॉयज़ यानी मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों का यहाँ पे क्विज़ कंपटीशन रखा गया था, जिसका उन्वान था सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामिक या दीन इस्लाम का ये क्विज़ इस वक्त सराई ईदगाह डोडा के अंदर यहाँ पे सीरत कमेटी डोडा के ज़रिए से मनाया जा रहा है और इसमें मुख्तलिफ़ स्कूली बच्चियों को यहाँ पे लाया जा रहा है और सीरत तैयबा या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या उनकी हयात के हवाले से बच्चों के अंदर उनकी जानकारी उन्हें पहुँचाने के लिए और उन्हें ये मालूम हो सके कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, उनकी शख्सियत क्या थी, उनके पैगामात क्या थे, उनकी ज़िंदगी क्या थी और उनके तरीक़े अतवार, उनका लेन देन, चाल चलन और लोगों के साथ मिलना जुलना कैसा था। इन तमाम चीज़ों के हवाले से उनकी तारीख़, उनकी जन्म से पहले की ज़िंदगी, उनकी हिजरत से पहले की ज़िंदगी, हिजरत के बाद की ज़िंदगी, मक्का की ज़िंदगी, मदीना की ज़िंदगी, असहाब के साथ ज़िंदगी, दुश्मनों के साथ अच्छा सलूक करने की ज़िंदगी, दूसरे जो बुरा करते थे उनके साथ किस तरीके के सलूक रहे उनके, उन तमामी चीज़ों के हवाले से बच्चों के अंदर इस तरीके के प्रोग्राम कराना और इन्हें उनकी ज़िंदगी के हवाले से बताना यकीनी तौर पर बच्चों की ज़िंदगियों को संवार करके उन्हें भी मॉरली, अखलाकी, तालीमी एतबार से अच्छे रुझान कायम करा सकते हैं। इस तरीके के क्विज़ प्रोग्राम, जिस तरीके से बच्चों से बातचीत हुई, बच्चों ने ख़ास तौर पर यही कहा कि अगर इस तरीके के प्रोग्राम मुख्तलिफ़ उन्वानात पर इसी तरीके से होते रहें और उसके अलावा अगर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को भी इन तमाम चीज़ों में जोड़ा जाए और सारी चीज़ें, जिसकी वजह से बच्चों का एक तरफ से नॉलेज भी, पढ़ाई का नॉलेज भी बढ़ सकता है और मॉरल एजुकेशन जो बहुत ही ज़रूरी है पूरे बच्चों के लिए, उनके लिए भी इस तरीके के प्रोग्राम कराने की अशद ज़रूरत है। इसी तरीके से आपको एक बार थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। आज यहाँ पे ये जो क्राउड आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ से जो मर्द और इनके साथ कुछ हमरा बच्चे और यहाँ से बच्चियाँ और इनकी माएँ और इनकी बहनें मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ पे आई हैं और मुख्तलिफ़ स्कूलों के असातिज़ा और उनके साथ वहाँ की जो मैम्स हैं या वहाँ की जो उस्तानियाँ हैं वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ पे बच्चों को क्विज़ के हवाले से हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इन तमाम चीज़ों को फ़रोग देने का काम कर रहे हैं। देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।